Okay, so Lagrange mean value theorem says what? If I have a real valued function, okay, say like this function will be like this. Okay, so this is from 0 to 5. So this is my 0 and this is my 5. So what it says that it has to be real valued function है, ठीक है, और this should be continuous in closed interval, ठीक है, it should be continuous in closed interval है ये, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है इसलिए, ठीक है, इट इज ए काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ये है, इट इज लिखना है बस स्टेटमेंट, ठीक है, एंड देन इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 5, ठीक है, दिस इज द सेकंड कंडीशन, ठीक है. व्हाट विल बी थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन इज f of 0 शुड नॉट बी इक्वल टू f of 5. तो f of 0 क्या है? f of 0 है 0 plus 4 which is 2, और f of 5 क्या है? that is 5 plus 4 which is 3, ठीक है. तो ये जो है ये आपका 2 आएगा और ये जो है ये आपका 3 आएगा, करेक्ट. तो दिस इज f of 0 is not equal to f of 5. So this condition is also satisfied. Then what we have to verify? Okay, we have to verify also. So to verify, what to do? We have to find the slope of these two point. We have to find the slope of these 2 point. To find the slope of these 2 point, what we need? We need x coordinate and y coordinate. So इसका x coordinate क्या है? 0, 2, और इसका x coordinate और y coordinate क्या है? 5, 3, ठीक है. तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है? वो ये बोलता है f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ठीक है. ये मेरा a है और ये मेरा b है, ये मेरा f ऑफ b है और ये मेरा f ऑफ a है. तो इन दोनों बीच में 0 और 5 के बीच में एक पॉइंट कम से कम ऐसा होगा जिसका अगर मैं स्लोप निकालू, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालू, सो अगर मैं इसका ऐसा टेंजेंट निकालता हूं, ठीक है, तो क्या होगा? तो दैट शुड बी इक्वल. तो ये जो सी पॉइंट है ना वो मुझे निकालना है. तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दो. एफ ऑफ एक्स क्या है? वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4. सो व्हाट विल बी एफ डैश ऑफ एक्स? इट विल बी 1/2 root of x plus 4. But what will be f dash of c? F dash of c will be 1/2 root of c plus 4. Correct? That is equal to f of b minus f of a. What is f of b? F of b is 3. What is f of a? F of a is 2. What is b? b is 5. What is a? a is 0. तो ये कितना आया? ये आपको मिला 1/5. अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और c की वैल्यू लेकर आऊंगा. तो क्या मिलेगा? 2 स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस 4 इज इक्वल टू 5. स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स 4, c प्लस 4 इज इक्वल टू 25. c प्लस 4 इज इक्वल टू 25/4. ये 4 विल बी ट्रांसपोज हियर, माइनस 4 हो जाएगा. c विल बी 25/4 माइनस 4 into 4 इज 16 ना. तो 25 minus 16 is what? 9. 9/4. So 9/4. Okay, so we will going to understand the third question of exercise 2.3. What it says? It says that check the validity of the Rolle's theorem for the following function. So first and second you can take as homework, easy है वो. थर्ड वन भी easy है actually, लेकिन मैं बता रहा हूँ. रोल्स थ्योरम क्या बोलता है? रोल्स थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, which is continuous between a and b, यहां से लेके यहां तक पूरा continuous है, in closed interval a and b and differentiable in open interval a and b. ओके, ये दो कंडीशन होते हैं रोल्स में. और तीसरा कंडीशन क्या है? f ऑफ a शुड बी इक्वल टू f ऑफ b. अगर ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, इट मींस इट इज सेटिस्फाइड एंड इट इज वैलिड फॉर रोल्स थ्योरम. ठीक है, तो आपको यही लिखना है क्या? f of x is continuous in this, f of x is differentiable at this. ठीक है, अभी f of 1 देखते हैं क्या है. What is f of 1? It is 2 into 1 square minus 5 into 1 plus 3. कितना हुआ? 3 plus 2 is 5. ये 0 हो गया.
then I will find f of 3. f of 3 is 2 3 square minus 5 into 3 plus 3. तो इसमें से मैं क्या करूं, 3 कॉमन ले लेता हूं, 3 2 जा 6 minus 5 plus 1, तो ये कितना हुआ 7. 7 minus 5 is 2. 2 into 3 is 6. तो मुझे यहाँ पर 6 मिल रहा है, right? So I can say that f of 1 is not equal to f of 3. Therefore, Rolle's theorem is not satisfied. Okay, not satisfied. Rolle's theorem is not satisfied. Okay, or Rolle's theorem is not valid. Or I can say that Rolle's theorem is not valid for this f of x. Clear? Easy tha ye first one, right? Fine. Now fourth one function says what? Fourth one, your function f of x is sin x minus cos x plus 3. ठीक है, sin x plus cos x plus 3. तो ये क्या होगा? ठीक है, sin x तो क्या है? It is continuous and differentiable, right? Cos x क्या है? It is also continuous and differentiable. 3 क्या है? 3 तो constant है, तो ये भी continuous और differentiable है. तो you can directly say that f of x is continuous at this closed interval and f of x is differentiable at this open interval, मतलब 0 to 2 pi. This you can say. ओके, डिफरेंशिएबल यहां पर हो रहा है, कंटिन्यूस वो यहां हो रहा है 0 to 2 पाई के बीच में. ओके, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो, प्लॉट अगर आप करना चाहो बाय टेकिंग सम वैल्यूज ऑफ x ओवर हियर, तो आप है ना, अगर x की वैल्यू π/4 लेते हो तो sin π/4 होता है 1/√2, cos π/4 भी होता है 1/√2. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा 3. तो ये आपको 3 मिलेगा. ठीक है, और आपका जो कर्व जो बनेगा वो समथिंग ऐसा बनेगा, मतलब ऐसा 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 बनेगा. आया क्या समझ में? इस तरह का कर्व आपका, मतलब आपको ग्राफ से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं. तो ये दोनों कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो गए. थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि आपका f of 0, देखो f of 0 क्या है? sin 0 माइनस cos 0 प्लस 3. sin 0 तो 0 होता है, cos 0 1 होता है, प्लस 3 आपको मिला 2. ओके, और दूसरा है f of 2 पाई. तो f of 2 पाई क्या होगा? sin of 2 पाई माइनस cos of 2 पाई प्लस 3. ये भी 0 minus 1, 0 minus 1 plus 3 which is equal to 2. So I can say that f of 0 is equal to f of 2 pi. Then I can say that this all conditions of Rolle's theorems are satisfied. ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्या? मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर, आपको लिखना जरूरी है. क्या है? all conditions of Rolle's theorems are satisfied. ठीक है, therefore Rolle's theorem is valid for f of x. ठीक है, खत्म कहानी, हो गया. बस उतना ही करना है, वेरीफाई ही करना है. आगे वैलिडिटी का वेरीफाई वैलिडिटी, हाँ यही है. ओके, बीच का आपको निकालने की जरूरत नहीं है. अगर निकालने के लिए बोला तो वो आगे आएगा. कैसे करना है बताऊं क्या? वो अभी चलो बता देते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम. क्या करूंगा मैं? f डैश ऑफ x निकालूंगा. ठीक है, मेरा f ऑफ x क्या है? f ऑफ x है sin x माइनस cos x प्लस 3. अब अगर समझो मुझे इसको वेरीफाई भी करना है तो क्या करूंगा मैं? f डैश ऑफ x निकालो. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x? डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x? इट इज माइनस sin x. तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरा sin x, और प्लस 3 दैट इज 0. सो माय f ऑफ f डैश ऑफ x इज दिस. इसको मुझे इक्वल टू 0 करना है. ठीक है, अब क्या करें इसको? हाँ, अब मुझे x की वैल्यू ऐसी निकालनी है जिससे ये 0 हो जाए. तो क्या होगा वो x की वैल्यू? लेट्स फाइंड. ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने मल्टीप्लाई बाय √2 एंड डिवाइड बाय √2 किया. ठीक है, इंटेंशनली. इससे मैंने sin π/4 बनाया, देन sin c cos d प्लस cos c sin d, ये हो जाएगा √2 sin ऑफ दिस इज इक्वल टू 0. मतलब ये क्या होना चाहिए? इसकी वैल्यू या तो 0 होना चाहिए, पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे, है ना. तो अगर मैंने π/4 प्लस x इज इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस π/4 मिलेगी. अगर मैंने π/4 प्लस x इज इक्वल टू पाई किया तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? पाई माइनस π/4 which is what? 4/4, that is 3 π/4.
अभी 3π/4 या -π/4 इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है क्या? 0 और 2π के बीच में आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 3π/4 आ रहा है। और कौन कौन सा आ रहा है वैल्यूज? इसके आगे और भी आ सकता है ना, तो चेक करते हैं अपन। π/4 इज इक्वल टू पाई 2π। तो देखो x की वैल्यू क्या आई? 2π माइनस π/4, 4 इंटू 4 टू जा 8, 8 माइनस 1 इज 7, 7π/4। 7π/4 आता है क्या इन दोनों के बीच में? 2π के बीच में आता है क्या? हाँ आता है, ये आता है। तो आंसर मेरे ये दोनों है, तो ये दोनों भी मेरे आंसर है इसके। मतलब मेरा जो क्रिटिकल पॉइंट जो होगा ना, जहां पर स्लोप 0 होगा, डेट विल बी 3π/4 एंड 7π/4 आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट आगे का भी देखते हैं होगा क्या। चलो 3π करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 3π माइनस π/4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4, कितना हुआ? 4 12, 11, 11π/4। ठीक है, ये तो बड़ा हो गया ना, ये बड़ा होगा, ये नहीं होगा, है क्या नहीं? अभी यही चीज मैं आपको ग्राफ में करके बताता हूँ, मतलब दिखाने के लिए जस्ट। ओके, तो सेम graph I have plotted here. This is from 0 to 2π, and I can see that this is at 3π/4 it is 0, means the slope of tangent at this point is 0, and the slope of tangent at 7π/4 is 0. So these are also called what? Critical points. Clear? Hands done. Okay, fifth sum. Okay, this is a split function f of x is equal to x square in a range 0 to 2. Okay, and then f of x is equal to 6 minus x in the range from 2 to 6. So I have to plot this based on this truth table. I have to plot the graph. It is important here to plot the graph. Okay, so this is what I have plot these two diagram as per the truth table, and then we will understand that next. Okay, so what I have done, I have plotted this graph, and I have tried to understand that how my graph looks like. What will be my next step? Next step will be to check whether this particular function, combined function f of x, is continuous from 0 to 6 or not. To find the continuity, what I need to do, I need to check left hand limit and right hand limit. Those two limits should be equal. Then I can say that it is continuous. Then again I have to check for what? I have to check for differentiability. Okay, at which point? At point 2. That's the reason I have plotted this separate graph. Okay, now I will going to remove this truth table because it is not required now, and with this graph we will going to prove left hand limit and right hand limit. Okay, so now what I'll do, I have to do left hand limit. What is this left hand limit and where I have to apply? I have to apply left hand limit at point 2. From where? From left hand side. So what I'll do, I will write limit, okay, when x tends to 2 minus f of x. ठीक है, मेरा f of x जो है वो कहाँ, कौन सा है? वो ये है, x स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर इसको x स्क्वायर लिखूंगा और फिर 2 को सब्स्टिट्यूट करूंगा, आई विल गेट 4। ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेन राइट हैंड लिमिट एट व्हाट? एट पॉइंट 2 माइनस, नॉट 2 माइनस, 2 प्लस f of x। ठीक है, यहाँ मेरा f of x राइट हैंड लिमिट में कौन सा है? ये है। इसका फंक्शन कौन सा है? y इज इक्वल टू 6 माइनस x है। तो मैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन का नाम लिखूंगा 6 माइनस x, विच इज व्हाट? 6 माइनस 2 विच इज 4। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो फर्स्ट कंडीशन फॉर रोल्स थ्योरम is satisfied that this particular function is continuous from 0 to 6। 2 में तो हमने यहाँ निकाल दिया कि ये कंटिन्यूस है, ठीक है, और ये 0 to 2 में तो कंटिन्यूस है ही, क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, और 2 to 6 से भी ये कंटिन्यूस है, क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। सिर्फ 2 का प्रॉब्लम था, तो वो मैंने सेपरेटली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैंने निकाल दिया और प्रूव कर दिया कि इट इज कंटिन्यूस। सो आई कैन से दैट f of x is continuous in what I can say? I can say that f of x is continuous in open interval, नहीं सॉरी, क्लोज इंटरवल 0 to 6। ये फर्स्ट कंडीशन मेरा हो गया।
अब मैं सेकंड कंडीशन कौन सा करूंगा, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन कंडीशन 0 to 6, ये करूंगा. So now we have to verify the second condition of Rolle's theorem, that is left hand derivative should be equal to right hand derivative. So left hand derivative will be what? Will be limit when h tends to 0. कहां से? लेफ्ट बोला है तो माइनस आएगा, एंड देन f of x. ठीक है, यहां पर मैं कहां निकालूंगा? 2 पॉइंट में निकालूंगा. ठीक है, तो 2 पॉइंट का पहले मुझे यहां पर एक पॉइंट लेना पड़ेगा और यहां एक पॉइंट लेना पड़ेगा. ये अगर मेरा 2 है, if this is 2, so what will be my y coordinate? Y coordinate will be 2 square, that is 4. तो ये मेरा 4 आएगा. ठीक है, अब मैं क्या करूं? अब मेरा फंक्शन आएगा क्या? इन दोनों का ये थोड़ा सा मैं ये h ले लूंगा. यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोला है ना, तो यहाँ मैं छोटा सा एक वैल्यू h लूंगा. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा मुझे? इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा मुझे 2 माइनस एच. ठीक है, 2 माइनस एच मिलेगा. और अगर ये मेरा 2 माइनस एच है तो इस पॉइंट का मेरा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा 2 माइनस एच द होल स्क्वायर. ये मेरा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा. 1 मिनट, जस्ट अ मिनट. ये 2 माइनस एच द होल स्क्वायर, ये मेरा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा. अब मैं क्या करूंगा? मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट. तो मैं अभी यहाँ लिखूंगा क्या? y2 माइनस y1 क्या है वो? 2 माइनस एच द होल स्क्वायर. ठीक है, ये मेरा y2 है और ये मेरा y1 है, दैट इज 4 अपॉन 2 माइनस एच. ओके, 2 माइनस एच माइनस 2. ये समझ में आया ना? y2 माइनस y1. अभी इसका कोऑर्डिनेट क्या है? इसका कोऑर्डिनेट है 2 माइनस एच और 2 माइनस एच द होल स्क्वायर. तो ये मेरा y2 है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो वही मैंने यहाँ लिखा है. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नाउ, राइट. ठीक है, ये सब मैं हटा रहा हूँ. ओके, अभी इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4h प्लस h स्क्वायर. ठीक है, माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस h. अच्छा, यहाँ पर लिमिट लगाना जरूरी है. ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये लिखना जरूरी है. फिर ये माइनस 4 प्लस 4 आप कैंसिल कर दोगे और ये h भी आपका एक कैंसिल हो जाएगा. और आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा, तो एक काम करता हूँ, शॉर्टकट नहीं करता हूँ, पूरा बराबर बता दो. तो ये h आपका आएगा कॉमन और ब्रैकेट में आएगा माइनस 4 प्लस एच डिवाइड बाय माइनस एच. ये माइनस माइनस कैंसिल. अच्छा, लिमिट लिखना जरूरी है, h टेंस टू 0. ठीक है, फिर आगे किया तो क्या मिलेगा? अभी ये माइनस 4 प्लस 0 डिवाइड बाय माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, आई विल गेट 4. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा 4 आ गया. अब ऐसे ही मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना है. ओके चलो, राइट हैंड डेरिवेटिव ये थोड़ा लंबा है. ठीक है, अब क्या करें? अभी स्प्लिट फंक्शन है तो स्प्लिट फंक्शन में थोड़ा लंबा ही रहता है. राइट हैंड डेरिवेटिव में o प्लस लेना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ पर थोड़ा आगे वाला h लेना पड़ेगा. ये मेरा h है. ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस एच. ठीक है, हाँ. टेल मी, back in 1 minute. क्या हुआ? Sir, can I just stop for... ठीक है, अभी मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है. राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मुझे ये h लेना पड़ेगा. तो ये मैंने 2 प्लस एच लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 प्लस एच. ठीक है, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? फंक्शन कौन सा है यहाँ पर डिफाइन? यहाँ पर है y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स. तो ये होगा मेरा y कोऑर्डिनेट इसका 6 माइनस 2 प्लस एच. ये मेरा y कोऑर्डिनेट होगा. इसको ये पूरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी. ये है 2 प्लस एच, दूसरा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 होता है 4 और ये माइनस एच. ठीक है, ये हो गया मेरा इसका कोऑर्डिनेट. अब मैं मेरे लिए आसान हो गया अभी इसको देखना ना. लिमिट h टेंस टू 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, y2 में किसको लू? चलो मैं इसको लेता हूँ y2. ओके, इसको मैंने y2 लिया. और y1 में किसको लू? ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है 2 और 4. इसको मैं y1 लेता हूँ. ठीक है, इसको मैं x2 लेता हूँ और इसको मैं x1 लेता हूँ. ओके, अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ लिमिट h टेंस टू 0 y2 क्या है? 4 माइनस एच माइनस 4 डिवाइड बाय 2 प्लस एच माइनस 2.
तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, मुझे मिला -h/h, ये भी कैंसिल हो गया और मुझे मिला -1. So what I can say here, I can say that left hand derivative and right hand derivative, they are not equal. ये तो मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 4 मिल रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव मुझे -1 मिल रहा है. So they are not equal. So I can say that my function f of x is not differentiable at x is equal to 2. Therefore I can say that all conditions of Rolle theorem are not satisfied. Okay, therefore Rolle's theorem is invalid for function f of x. अभी ये हमने theoretically समझा दिया है कि ये मतलब invalid है, मतलब differentiable नहीं है यहाँ पर at this point. Geometrical significance इसका कैसे दिखाएंगे? देखो, अगर मैं स्लोप निकालूंगा अगर इस एट दिस पॉइंट, तो मैं नहीं निकाल सकता एक पॉइंट पर स्लोप. क्यों? क्योंकि स्लोप इस लाइन का होगा, इस लाइन का होगा, इस लाइन का होगा, इस लाइन का होगा, इस लाइन का होगा या इस लाइन का होगा, मुझे नहीं पता है. करेक्ट? दैट्स द रीजन इट इज इनवैलिड. Hope it is clear to you now, right? Yes, sir. Hello.